Okay, a very good evening to one and all. We are about to start the next session, which is from question number 67, where we discussed till 66 question in the last class. This question directly coming from the 12th class, I would say from the chemistry, except the definition of the microplastic. All the things are coming from the class 12th, right? So we will be doing the detailed discussion over these questions in a quick and fast manner, right? So before we starts with the question, let's put some light on the detailings which are there so that it will be easy for us to relocate the things. So question number 67, what it says? It says choose the correct statement. So means you have to choose the correct statement. So first let's do a micro dissection of this question, which is based on the unit polymer, which was there, and a lot of questions have been asked on PET in the recent past. So let's do the one by one stuff, that which are the correct and which are the incorrect. So guys, let me tell you, there are two type of polymer. One is called thermoplastic, another one is called thermosetting. Thermoplastic can be remolded from one thing to another thing and easy to remold, while thermosetting cannot be remolded again, right? So that is the major difference between thermosetting and thermoplastic. We will be doing a detailing of the same in a quick fast manner. So thermosetting plastic is easier to recycle compared to thermoplastic. This is exactly reverse. Thermoplastic easy to recycle, right? But thermosetting is not. Thermoplastic easy to recycle, can be remolded, but thermosetting not recycled. You cannot do this, the recycle thing. So the first statement is absolutely incorrect. Wrong हो गया पहला तो. Then we move to the second statement. Microplastic include plastic size less than 5 micrometer. ये 5 micrometer तो नहीं है, right? 5 millimeter भले ही ये नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये साइज देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है. लेस देन 5 mm है, ठीक है, तो माइक्रोमीटर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है. अभी हम बात करेंगे इन बातों पे. तो माइक्रोप्लास्टिक में 5 माइक्रोमीटर नहीं होता, 5 मिलीमीटर होता है. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट शुड बी लेस देन 5 mm. तो ए इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट. लेट्स कम टू सी. सी सेज thermal depolymerization involve the conversion of assorted polymer into the petroleum. बिल्कुल ठीक बात है. Whenever we heat these kind of polymers at higher temperature, we can convert the polymers into petroleum. This is absolutely correct. So we marked it correct, right? Then we come to the next statement, which is there, statement D. Incineration, which already you people are aware that incineration is basically the heating of something in the presence of oxygen at a very high temperature. So incineration is not an environmental friendly option to dispose plastic waste. This we have already taught multiple times. The question have come that incineration of biomedical waste and plastic produce oxins and dioxins which are not environment friendly. So this statement is correct because they produce oxins, dioxin, paradioxin and furan. So the D statement is also correct as far as the discussion is concerned. C correct, D correct. Then comes to the last statement. Recycle the PET bottle, right? Okay, polytetraethylene, right? PET bottle or PET bottles which you use for cold drink and all can be used effectively for making variety of fabrics. Yes, the PET bottle can be shredded into fine fabrics which are basically used to make certain varieties of materials as well as in some of the type of the clothing. So this is also correct. So C, D, E are correct. And the correct answer here is 2. But let's see the logic behind all of them which are exactly there. So the correct answer for question number 67 is 2. Let's examine one by one how the questions have modified themselves. So first option, as I told you that thermoplastic is easier to recycle compared to thermosetting. Thermosetting is easier, which is absolutely wrong. Thermoplastic can be reheated, melted and remolded many times, so they are generally recyclable. While when we talk about thermosetting plastic, once cross-linked and hardened, they cannot be remelted and are very difficult to recycle. Therefore, thermosetting plastic are not easier to recycle than thermoplastic. तो ये statement आपकी wrong हो जाती है guys, right? So we can say okay, this is wrong.
Then comes to the second statement, which is there. Microplastic include plastic of size less than 5 micrometer only. No, the size of the plastic in the microplastic is less than 5 mm, right? So already written here, microplastic are usually defined as the plastic particles smaller than 5 millimeter, not 5 micrometer, right? और टिपिकल जो रेंज है वो आपका 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 mm तक जाता है गाइस, तो ये आप याद रख सकते हैं, पर जनरली 5 मिलीमीटर से नीचे होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। मैंने पहले बताया आपको कि 5 mm होता है, मिलीमीटर नहीं होता है। कमिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 3, which says thermal depolymerization. So as we said, thermal depolymerization involves the conversion of assorted polymer into petroleum. Absolutely true. We can do the formation of petroleum products while heating these kind of polymers, right? So thermal depolymerization is the process that uses heat and pressure to break the long polymer chain into the organic or plastic feedstock into short hydrocarbon chain, produce an oil similar to light crude and other liquid transported fuels, and thus the statement is converted as solid polymer into like petroleum is correct. So this statement is absolutely correct, which we also marked as correct. So 3 options sorted. Coming to the fourth option, which is a very popular question and multiple times it have been asked about the incineration process. So incineration, you know that heating something in the presence of oxygen at a very high temperature is incineration, and ma'am would have taught you these things in municipal solid waste. So incineration is not an environmental friendly option because they produce dioxin and furan, right? So yes, it is true, right? So we can see why it is true. So conventional plastic incineration can destroy most of the plastic but release harmful pollutants such as dioxin, heavy metals, and greenhouse gases unless very advanced emission control are used. Because of these pollutant issues, standard exam perspective treat incineration is not an environmental friendly dispose method. So that's why we said that okay, this is not a correct method. So ये ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इनकरेक्ट है, और जो पूछा गया क्वेश्चन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा गया। अब बात आती है पेट की, राइट? तो जो पेट बॉटल्स होती है वो तो सबने आपने देखी है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई पॉलीइथिलीन टेरीपेथिलेट होता है जो पेट बॉटल है, पहले भी इस पे क्वेश्चन आया है ना? तो पॉलीइथाइलीन है ना, पैथेलेट, ठीक है, उसमें टी साइलेंट आपका होता है, पॉलीइथाइलीन पीथेलेट या टेरीपेथिलेट, ये जो पूरा इसका फुल फॉर्म होता है ये तो आपको याद रखना है। तो रिसाइकल पेट कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे कपड़े बनते हैं इससे। तो रिसाइकल पेट from the bottle is melted and spun into polymer fibers, which are then woven or knitted into many types of fabric, textile, clothing, bags, upholstery, etc. Hence, it is a statement is correct. So यहाँ से आपको पता चल गया कि जो नीचे की स्टेटमेंट है C, D, E वो करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट गाइज आपकी इनकरेक्ट है। So C, D and E are correct, and hence the correct answer is basically 2. I hope it is clear to each and every one. तो करेक्ट आंसर फॉर 67 इज बेसिकली ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है 67 में? क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे गाइस, वी हैव टू डू सम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। लंबा समय नहीं लेना है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आप लोगों को अवेलेबल है, यू कैन डिवोट एज मच एज टाइम यू विश टू। क्लियर है सबको? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर इन क्वेश्चन नंबर 67? एकता, मित्तल, निदा, प्रिया, सविता, ऑल द पीपल हु आर हियर, क्लियर है? जल्दी से चलिए जी, हम लोग आगे चलते हैं। Coming to question number 68, very good question from the side of statistics, right? First, let's view the question, then we will go to the explanation directly for question number 68, right? इसके बारे में बात कर लेते हैं। Question number 68 statistics से एक question है। So it says, which of the following statement regarding statistical tool to assess the various aspects of relationships is or are true? इनमें से कौन कौन सा true है, right? तो ये हमें बताना था इनको कि which all are true, right? So let's go to the explanation first because it is a statistical question, so directly we can correlate with the facts. Let's talk one by one.
फर्स्ट स्टेटमेंट सेज फॉर असेसिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव नहीं है, ध्यान रहे। तो पहला स्टेटमेंट जो है फॉर असेसिंग असेसिंग टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल कोहन्स कपा इज यूज्ड, ये गलत स्टेटमेंट है गाइस। तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा भाई कोहन कपा यूज कहाँ होता है, जो पैरामीटर है स्मॉल के, ठीक है, कोहन कपा कहाँ यूज होता है, तो लेट्स हैव अ लुक। कोहन कपा एक तो है क्या, तो कोहन्स कपा इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑब्जर्वेबल और मेथड्स ऑफ कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव डाटा। ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव के लिए तो ये यूज होता ही नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था कि क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज नहीं होता, this is basically used for qualitative data agreement, right? And it's correct for agreement occurrence by chance in between qualitative data used for variables like yes or no, दो ऑप्शन हो जहाँ पे, है ना, डिजीज प्रेजेंट और एब्सेंट, डिजीज माइल्ड मॉडरेट और सिवियर, जहाँ पे कैटेगोरिकल है आपका और क्वालिटेटिव है। तो ये पॉइंट ध्यान रखनी है कि कोहन्स कपा कैटेगोरिकल वेरिएबल और क्वालिटेटिव डाटा के लिए ही है, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ये है ही नहीं। तो ये आपका गलत हो गया। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, एग्रीमेंट बिटवीन द टू डॉक्टर्स डायग्नोसिंग ट्यूबरकुलोसिस as present or absent, so when Cohen's kappa is not used for quantitative variable, right? तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में हम एग्जांपल ले क्वांटिटेटिव, जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जैसे ब्लड शुगर आप क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ब्लड शुगर हो गया आपका, ब्लड ग्लूकोज हो गया, हाइट वेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बीएमआई, ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स हो गया। कोहन कपा कैन नॉट हैंडल कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड इट इज डिजाइन ओनली फॉर कैटेगोरिकल स्केल। तो ये ध्यान रखना है कि कोहन कपा के लिए जो स्टेटमेंट यूज हुआ है वो ये काम करता ही नहीं है, तो उसको फ्री में क्यों घुसाना है, राइट? तो वहां ये यूज नहीं होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राइट? अब आप कहेंगे कि क्वांटिटेटिव के लिए फिर यूज कौन सा होता है साहब? तो क्वांटिटेटिव के लिए देखिए ध्यान से जरा, क्वांटिटेटिव के लिए हमें यूज क्या करना है, मेथड, तो इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट आईसीसी, ये यूज होता है क्वांटिटेटिव के लिए। तो मोस्ट कॉमनली यूज मेजर फॉर एग्रीमेंट फॉर क्वांटिटेटिव डाटा, ब्लैंड ऑटमैन एनालिसिस, राइट, ये भी assess agreement by mean differences limits of agreement, and concordance correlation coefficient CCC, ये मेजर करता है प्रीसीजन और एक्यूरेसी। तो बेसिकली इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज होता है अगर हमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करना होता है। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग द ब्लड प्रेशर मेजर बाय मैनुअल स्फाइग्नोमैनोमीटर या डिजिटल बीपी मशीन, तो यूज इंटर कोरिलेशन कोफिशिएंट या ब्लैंड ऑटमैन प्लॉट, नॉट कापा। तो अगर कोई आपसे पूछता कि भाई क्वांटिटेटिव के मेथड बताओ फिर, ठीक है, क्वांटिटेटिव के मेथड बताओ, अगर आपको ये कोहन कापा सिर्फ क्वालिटेटिव में यूज होता है तो क्वांटिटेटिव के कौन से मेथड है, तो क्वांटिटेटिव के मेथड है इंटर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो आईसीसी हमने बोला है, और दूसरा ब्लैंड एटमैन प्लॉट, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि कोहन कपा यूज होता है, ये यूज नहीं होता है भाई, ठीक है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर बी पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कोरिलेशन पियर्सन्स कोफिशिएंट एसोसिएशन या नॉट एग्रीमेंट और एग्रीमेंट मेजर हाउ क्लोज द वैल्यूज आर। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड शायद थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हैं क्योंकि आया भी हुआ है पहले। द रेजिडुअल इन अ लीनियर रिलेशनशिप शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है भाई। जो रेजिडुअल वैल्यूज होती है, रेजिडुअल होते हैं किसी दो वेरिएबल में या लीनियर रिलेशनशिप में, उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना जरूरी है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहली बात तो रेजिड्यू क्या है, रेजिड्यू पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन लीनियर रिग्रेशन रेजिड्यू इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y इज डिपेंडेंट ऑन x, जैसे हमने कहा रेजिड्यू क्या है, y का ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस y का प्रेडिक्टेड वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो रेजिड्यू है। रेजिड्यू रिप्रेजेंट द रैंडम एरर इन द मॉडल। एंड why we say that residue should be normally distributed, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल होना चाहिए, बेल शेप कर्व होना चाहिए, उसका कोई लॉजिक तो होगा, राइट? तो वो लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। तो why should the residue be normally distributed? Normality of residue is one of the key assumption of linear regression, especially for statistical inference, कि जब तक वो नॉर्मल कर्व को फॉलो नहीं करेंगे रेजिड्यूज, हम लीनियर रिग्रेशन उस पर अप्लाई कर ही नहीं सकते, उनका नॉर्मलाइज होना जरूरी है।
so that we can draw a valid statistical inference from that. तो ये बहुत जरूरी है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो डाटा जो है, रेजिड्यूज जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. फॉर फर्स्ट वैलिड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे. रिग्रेशन यूज टी टेस्ट और एफ टेस्ट. सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट. These tests assume the residual follow a normal distribution. तभी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर टी टेस्ट या फिर वेरियंस रेशियो टेस्ट या एफ टेस्ट, जब आप ये प्रूव कर दे कि भाई डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, बोलते हैं ना स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को फॉलो करें तभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा सकते हैं. तो वो बिल्कुल सही बात है. दूसरा सेकेंड इज एक्यूरेट कॉन्फिडेंस इंटरवल. आपको वहां से मिल जाता है. तो नॉर्मल जो रेजिड्यू होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि आपका स्टैंडर्ड एरर करेक्ट है. रिलायबल कोफिशिएंट कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल रहा है आपको कि भाई 90% जो है आपका सिग्निफिकेंस है. तो 10% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, 5% हो गया या 1% हो गया, वो आपको देखना पड़ेगा. बट वो एप्लीकेबल तभी है व्हेन दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. देन कम मॉडल एरर और रैंडम एरर. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाइज एरर आर रैंडम, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट जीरो एंड नॉट सिमेट्रिकली बायस्ड. तो ये सारी फीचर वो देंगे जो नॉर्मल कर्व देती है, बिकॉज हमने कहा है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इम्पोर्टेंट इसके बारे में क्या है, वाई वंस दे आर normally distributed, the dependent variable itself does not need to be normally distributed, only residues must be normal, and normality is mainly required for small sample size. With large samples, central limit theorem जो आपको पता है z value हम निकालते हैं m minus u upon sigma. तो slight deviation from the normality are accepted. And how to check the normality for residue, graphical method भी होता है, histogram draw कर लीजिए, bell shape करवाएगा. QQ plot point follow diagonal line जो आपके quadrants होंगे. और स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आपको जो है ये अगर टेस्ट आपके जस्टिफाइड आते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए डाटा को, है ना. शेपिरो विल्क टेस्ट और कोलमोरगोश सिमरोव टेस्ट, ये दोनों. ठीक है. और अगर आपके रेजिड्यू नॉर्मल नहीं है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये डीप बातें हुई हैं बहुत इस बार इस पेपर में इस क्वेश्चन को लेके. तो अगर आपके जो रेजिड्यूज है लीनियर रिग्रेशन मॉडल में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब क्या, राइट. तो उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल में लॉग करके या स्क्वायर रूट करके, जिसको आप कहते हो कि हमने नॉर्मलाइज किया डाटा को. वी यूज नॉन लीनियर रिग्रेशन एंड यूज जनरलाइज लीनियर मॉडल, जीएलएम हम यूज करते हैं. उस केस में ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जांपल इफ वी मॉडल BP as a function of age, so predicted BP value are calculated, residue actual BP minus predicted value should be normally distributed. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया है बीपी का कि हम कैसे कह सकते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि रेजिड्यूज इन अ लीनियर रिलेशनशिप शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम आ जाते हैं अगले पे, विच इज बेसिकली सी. सी स्टेटमेंट क्या कहता है? सी स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी बात कहता है. सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा. फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम. ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि भाई इस ड्रग का इफेक्ट है कि नहीं है, या इस डोज का इफेक्ट है कि नहीं है पेशेंट पे, तो एक्सपोजर का आउटकम भी है ना, जैसा हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पे देखते हैं, या जहां पे सिर्फ दो ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, यस और नो, या रिलेटिव रिस्क इज यूज्ड. तो ये स्टेटमेंट ट्रू किस लिए है कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप की दोनों पैरामीटर पे डिपेंडेंसी क्या है. मान लीजिए आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, आपके फीवर में डिक्लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट ऑफ केस, है ना. या फिर रिलेटिव रिस्क की इस चीज को लेने का, मान लीजिए कोविड की डोज आपने लगवाई तो इसको लगवाने का रिस्क क्या है भाई, है ना. इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिस्क. तो फॉर असेसिंग जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर असेसिंग, ठीक है, क्या है ये, तो फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, मतलब एक आप एक्सपोजर दे रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो एक तरह का रिलेटिव रिस्क आपका हो गया. तो रिलेटिव रिस्क आरआर क्या है, इज द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आउटकम अकरिंग इन एन एक्सपोज ग्रुप वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग इन एन अनएक्सपोज ग्रुप. कि जिसको दिया ड्रग आपने, जिसको नहीं दिया, दोनों पे क्या इंपैक्ट हुआ, वो हमें देखना है. While relative risk is used to quantify the association or effect of size and exposure on outcome, especially in the cohort studies. cohort studies होती है जो हम सेम एज ग्रुप पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम कोहर्ट कहते हैं. इट स्पेसिफिकली मेजर्स द रिस्क डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, कि क्या क्या डिफरेंस है. जैसे मान लो 5 साल के एक कोहर्ट को दिया, 10 साल वालों को दिया, 25 साल की एज वालों को दिया, फिर 60 ईयर वालों को दिया. मेजर्स लाइक पियर्सन्स फॉर क्वांटिटेटिव एंड
Spearman's row rank on non-parametric or odd ratio for case control study. Logistic regression are often associated with the strength of a statistical relationship or correlation. However, relative risk is valid measure of the strength of association or impact of binary exposure, जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, हुआ कि नहीं हुआ, yes कि no, right? तो द आउटकम yes वर्सेस no indicate a binary category, या तो है या नहीं है, 0 या 1, binary मतलब for a binary exposure and a binary outcome. So relative risk is one of the primary measures of the strength of association. The verdict is true in context of epidemiological association measure. अब मजे की बात सुनिए, एनटीए वालों ने क्या किया, एनटीए वालों ने इसको ऑप्शन में ही नहीं रखा, ठीक है, कॉम्बिनेशन में जो था, जो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए था वो 3 चॉइस वाला था, और ऐसा बहुत हुआ है इस बार के पेपर में कि एक को छोड़ दिया किसी को। तो इससे घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम क्या सही हो सकता है, या उनके पास अगर चॉइस आ जाए तो वो चॉइस लगा सकते हैं। चौथी चॉइस को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, बट दिस इज ट्रू, दिस एक्चुअली इज फॉर रिलेटिव रिस्क। चौथी चॉइस को देखते हैं, डी को, कहता है कि व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आप पढ़ते हैं रिग्रेशन में कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, और इक्वेशन है आपका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन लीनियर, वी डू कर्विलिनियर रिग्रेशन। ये भी बात सही है, कर्विलिनियर रिग्रेशन ऐसे में हम यूज करते हैं। द टर्म कर्विलिनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन इज यूज व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and dependent variable is curved non-linear. If the dependent variable is quantitative and the relationship with independent variable is non-linear, then form non-linear model is appropriate, and this might involve transforming the independent variable, squaring, जैसे x की बजाय x square कर लेंगे, with linear regression framework and polynomial regression, or using model that inherently non-linear, true non-linear regression हम use करते हैं वहाँ पे। In general term, फॉर दिस नॉन लीनियर रिग्रेशन यूज होता है ऐसी जगहों पे, या उसी का नाम होता है कर्विलिनियर रिग्रेशन। इज अ कॉमन थॉट, स्लाइटली इनफॉर्मल डिस्क्रिप्टर फॉर मॉडल कैप्चरिंग अ कर्व इन द रिलेशनशिप, की मतलब डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप ना हो, जहां पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर बने दोनों में, तो वहां पे आप नॉन लीनियर रिग्रेशन या कर्विलिनियर रिग्रेशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया, अगर लीनियर रिलेशनशिप है तब तो नॉर्मल रिग्रेशन यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन। लास्ट में एक आते हैं ई स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है, राइट, पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या बोलता है, देयर आर 3 पैरामीटर फॉर एक्सप्रेसिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ क्वांटिटेटिव। तो भाई ये आपको बता दें हम कि 3 तो नहीं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। 3 इन्होंने यहाँ गलत कह दिए, 2 में ही काम चल जाता है, बाकी के तो कांस्टेंट होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। तो a simple linear relationship between one dependent variable y, one independent variable x is expressed like y is equal to b naught b1 x plus epsilon। तो ये 2 से ही काम चल जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए था, 3 का तो यहाँ जिक्र आना ही नहीं चाहिए था। फिर भी हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें आपके पास और साथ है। जैसे यहाँ पे मेंशन हुआ है b नॉट, तो b नॉट बेसिकली इंटरसेप्ट है, कांस्टेंट है। b1 आपका स्लोप है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और एरर टर्म है, रेजिड्यू है जो एप्सिलॉन है। तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए गाइस कि b नॉट इज इंटरसेप्टर, b1 इज द स्लोप एंड इस इज एरर टर्म, वो जरूरी ही है। The parameter that define the line linear relationship is incorrect. b naught and slope b1 is the 2 parameter. The error term epsilon is a random variable, not a fixed parameter. तो ये भी फॉल होगा क्योंकि 2 ही पैरामीटर चाहिए होते हैं, इंटरसेप्ट और स्लोप, ठीक है। यही इक्वेशन आपको मैडम ने ऐसे लिखवाई थी, मैं बता देता हूँ, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे आपको रिलेशनशिप लिखवाई गई थी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हमने अलग पैरामीटर यूज करे हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू b1 हो गया, है ना, और a प्लस बी एक्स की जगह। तो यहाँ से वर्डिक्ट ये निकला कि जो स्टेटमेंट है आपकी, c भी ट्रू है और b भी ट्रू है और d भी ट्रू है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जहाँ पे b c d हो, है ना। तो ऐसे में एनटीए के पास एडवांटेज आ गया। एनटीए चाहता तो इसके भी 2 आंसर दे सकता था, लेकिन एनटीए ने सिर्फ बी और डी को ही करेक्ट चॉइस ठहराया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है इस पेपर में, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हियर द 2 आंसर कुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही आंसर दिया है, विच इज 4th वन।
जबकि सी भी आपका सही स्टेटमेंट में आता है। अगर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो सी इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दो ऑप्शन हो सकते थे, बी और सी भी करेक्ट थे और बी और डी भी करेक्ट थे। बट अब चॉइस बॉल जो है वो एनटीए के पाले में आ गई। एनटीए ने फोर्थ वन को बोल दिया हम तो इसको ले रहे हैं, और डिनाई क्या करेंगे। तो बी और डी ले लिया, जबकि ये आंसर भी करेक्ट होना चाहिए था, बी और सी, क्योंकि सी स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़े होती हुई भी दिखती है। बट बात फिर से वही है कि जिस क्वेश्चन पे एनटीए ऑब्जेक्शन कोई पाता नहीं है स्टूडेंट से उस समय, क्योंकि तब तो एनालिसिस इतनी डिटेल में हो नहीं रखी होती, एम्बिग्यूटी होती है, आंसर की भी नहीं आई होती है, तो एनटीए उसी को सही मान लेता है। बट इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप उसकी डेप्थ में ना जाए। ठीक है, यू हैव टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन टू चेक आउट व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स। वो जरूरी है बहुत ज्यादा आज के टाइम में करना, क्योंकि दोबारा रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, तो इनको डीप डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 68। द करेक्ट आंसर वाज टेकन एज 4 व्हिच इज बी एंड डी, बट वन ऑफ द आंसर कुड हैव बीन बी एंड सी आल्सो, बिकॉज़ स्टेटमेंट सी भी सही है और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सही कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर पूछे गए थे, रिलेशनशिप इज और ट्रू। राइट, so is this question clear to each and everyone? Question number 68, the correct answer taken by NTA is fourth. क्वेश्चन नंबर 68 क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम। कुछ कुछ फैमिलियर चीजें थी इसमें, दो चीजें तो फैमिलियर ही थी, बाकी थोड़ी सी चीजें आउट ऑफ और थी। जैसे कोहन कपा पहली बार ही पूछा गया, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहले कभी कोहन कपा का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, ये आया एक अच्छा क्वेश्चन इकोलॉजी की साइड से गाइस, पहले भी इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, व्हेन वी वर डूइंग आवर इकोलॉजी में भी ये डिस्कस हुआ था, क्वेश्चन नंबर 69। दोबारा से डिस्कस करने का इसको मौका मिल रहा है, तो लेट्स पुट सम एनर्जी ओवर दिस। राइट, इसकी पहले थ्योरी के ऊपर हम नजर मार लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है, क्वेश्चन को हाईलाइट करते हुए लेट्स मूव टू द थ्योरी फर्स्ट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कहता है। द प्रपोर्शन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड दैट इज यूज टू प्रोड्यूस न्यू कंज्यूमर। अब देखिए, जो फूड आप लेते हैं वो एसिमिलेट कितना हो रहा है, हमने बताया कि 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, 10% अगले लेवल पे ट्रांसफर होती है। तो जितना ट्रांसफर होगी वही तो अगले लेवल के बायोमास को बनाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे यही मेंशन है, बायोमास इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जितना आप एसिमिलेट कर पाते हैं, जो खाना आपको लगता है वही तो जा रहा है ना, जो वेस्ट हो गया वो वेस्ट हो गया। सो द proportion of assimilation of food that is used to produce new consumer biomass is production efficiency। इसी को नाम दिया गया प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एंडो एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को वैसा ही कर लेते हैं जैसा उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको एक्टोथर्मिक कहते हैं। विच चेंजेस देयर बॉडी टेम्परेचर विच चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक which has a constant body temperature like we mammals and human beings. So for their production efficiency, so fish है, कार्निवोर है, हर्बीवोर है, डिट्राइटिवोर है, काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ डिटेल। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि भाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है एक्चुअली में सर। Production efficiency is the fraction of assimilated energy that is converted into the new consumer biomass, commonly expressed as जो आपका नेट प्रोडक्शन हुई है और एसिमिलेशन जो एनर्जी का हुआ है इनटू 100। तो आउटपुट क्या है? नेट प्रोडक्शन जो बायोमास में चली गई, और जो एनर्जी लेके आपने एनर्जी एसिमिलेट की थी वो आपका इनपुट था। तो ये तो आपको पता ही, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ये फार्मूला तो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, एक फिश दिया है, एक कार्निवोर दिया है, एक हर्बीवोर दिया है, एक डेट्राइटिवोर दिया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेस की। फिशेस एक्टोथर्मिक है, वर्टिब्रेट्स हैं, जनरली हैव लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसी अमंग एक्टोदम्स कंपेयर टू many invertebrate groups, so they come first in the increasing order। सबसे पहला नंबर फिश का ही आना था। राइट, तो हर्बीवोर टिपिकली हैव a moderate efficiency as they convert assimilated plant energy into new biomass, placing them above the fishes। ये फिश के ऊपर है। क्यों ये फिश के ऊपर क्यों है? ठीक है, क्योंकि मछली बहुत छोटी छोटी भी होती है एनवायरमेंट। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी की है, बहुत छोटी छोटी भी होती है। तो हर्बीवोर इनसे ऊपर होंगे इन टर्म्स ऑफ बायोमास।
ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी मछलियां भी एग्जिस्ट करती हैं एक्वेटिक वाटर बॉडी में, आप सिर्फ शार्क, वेल और इन पे फोकस ना करें। फिर हम बात करते हैं डेट्राइटिवोर की। डेट्राइटिवोर्स ऑफन अचीव हायर एफिशिएंसी बिकॉज दे फीड ऑन ऑलरेडी प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर which microbe that enhance digestibility, increase assimilation and secondary production. Carnivores के ऊपर लाइट डाल लेते हैं। Tend to have the highest production efficiency among those ectothermic group because uh, animal prey is nutrient dense and yield high assimilation. So large share of assimilated energy can be turned into the growth. तो बायोमास ज्यादा मिलेगा। तो फिश को नीचे रखने का मतलब इसलिए है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी मास तो सिर्फ वाटर होता है। ठीक है, आप ये कहे कि भाई मतलब एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट इनमें ज्यादा हो, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बायोमास की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले फिश का ही नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि फिश बहुत छोटी छोटी भी मिलती है आपको ना, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी फिश की बहुत कम है। ठीक है ना। तो अरेंजिंग गिवन एक्टोदम इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी, फिशेस सबसे कम है, उसके बाद हर्बीवोर आ जाएंगे, फिर आपके डेट्राइटिवोर आएंगे और लास्ट में आएंगे कार्निवोर, क्योंकि कार्निवोर बड़े बड़े होते हैं। एक्वेटिक वाटर बॉडी के अंदर शार्क हो गई, वेल हो गई, एलिगेटर हो गए, बड़े बड़े होते हैं, तो उनका बायोमास बहुत ज्यादा होता है। तो फिशेस को सबसे लो स्टार्टा पे रखने का यही मीनिंग है। ठीक है, और हर्बीवोर जिसमें से जू प्लैंकटन है वो छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे प्लांट को खाते हैं। तो फिशेस सबसे पहले है और कार्निवोर सबसे लास्ट में है। ठीक है, और बीच में आपके हर्बीवोर और डेट्राइटिवोर्स। तो ये स्पेशल केस है बायोमास एफिशिएंसी के लिए। ऑर्डर जो ये फॉलो होता है एक्वेटिक वाटर बॉडी में, ये एक तरह का स्पेशल केस है, ये हर जगह लागू नहीं होगा, ये बता दूं आपको। ये स्पेसिफिक है सिर्फ एक्वेटिक वाटर बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है कि जितना हम एसिमिलेट करते हैं वही आपका बायोमास बनाता है, तो आपकी बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है। तो छोटी फिश को खाएगा, उसको एक आधी फिश से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एक आधी फिश से उसको क्या मिलेगा, उसको तो जब 2-4 हजार फिश खा लेगा तब जाके बॉडी में कुछ लगेगा, चिन्नी चिन्नी होती है। ठीक है, तो जितना आपका छोटा सा टैडपोल टाइप होता है ना लार्वा, उतनी इतनी फिश होती है, आपने देखी हो तो, अगर कई बार दिखती भी है कि कहीं पे जो है बारिश का पानी भर गया, वहां छोटी छोटी फिश दिखाई देंगी पैसे आपको, बहुत छोटी छोटी। राइट, तो फिशेस जो है वो सबसे लो कैटेगरी में है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी। फिर आपके हर्बीवोर आते हैं, जिसमें आपके जू प्लैंकटन आएंगे जो फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं और लार्ज नंबर में खाते हैं। और फिर आपके डेट्राइटिवोर्स आते हैं, क्योंकि उनको तो डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना है, तो बना बनाया फूड मिल रहा है। और लास्ट में आते हैं आपके कार्निवोर इन टर्म्स ऑफ बायोमास, क्योंकि वो तो बड़ा चंक लेते हैं। मान लीजिए वेल हो गई, शार्क हो गई या एलिगेटर हो गए, तो बड़ा चंक लेते हैं। राइट, तो ये अच्छा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब पर ये फिक्स रेजीम है कि छोटी फिश जो सबसे पहले, सबसे लो बायोमास एसिमिलेशन एफिशिएंसी, फिर हर्बीवोर आएंगे। ठीक है ना, ABCDFGH, तो जी चला गया बीच में से, हर्बीवोर आ गए, फिर डेट्राइटिवोर आ गए, और फिर कार्निवोर आ गए आपके। राइट, तो ABCD जो पहले आना था, वो D और C बाद में आएंगे। राइट, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन ली है आफ्टर लिटरेचर रिव्यू, तो आप इसको ऐसे लिख लें जब भी ये बायोमास एफिशिएंसी का एक्वेटिक वाटर बॉडी में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे से स्टार्ट करें। ठीक है, ये सबसे लो एफ फिश, फिर उसके बाद लो हर्बीवोर, ये कट दिया, और इन दोनों को जो है उठा के आगे ले जाइए। ठीक है ना, इन दोनों को उठा के आगे ले जाइए विद रिवर्स ऑर्डर। पहले कौन आएगा, डी, डेट्राइटिवोरस, और उसके बाद आपका कार्निवोर्स। सिर्फ खाली बायोमास के केस में ऑर्डर होगा और किसी केस में ऑर्डर नहीं होगा, और वो भी स्पेसिफिकली। अरे वही तो बता रहा हूँ, डी क्यों नहीं आया पहले, डी कैसे आ जाएगा पहले। आप मुझे एक बात बताओ, माइक्रोब का कितना बायोमास होता है, आप क्या समझ रहे हैं, एक माइक्रोब्स कितना भी छोटा हो सकता है, तो उसका कार्निवोर से कैसे आ जाएगा पहले। ठीक है, क्योंकि डेट्राइटिवोरस इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं ना, आपके अर्थवॉर्म भी हैं, आपकी वहां पे फंगस भी है। ठीक है, आपके कुछ वायरस भी हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, तो इसीलिए
डी नहीं आएगा पहले। डी का ना आने का कारण ये है क्योंकि डी तो बचा कुचा अच्छा खासा बायोमास लेता है। ठीक है, डी क्या है, डी का सबका सबका वेस्ट प्रोडक्ट डी के पास आता है, डिकम्पोजर के पास। उसको तो खाने की कमी नहीं है, तो उसको तो बना बनाया मिल रहा है, रेडी टू ईट वाला टाइप्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो उसके पास जा रहा है, दैट्स वाई। तो फिश ही सबसे नीचे रहने वाली है इसमें। ठीक है, उसके बाद हर्बीवोर होते हैं, फिर डेट्राइटिवोर, फिर कार्निवोर। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए पूछा गया ये आपसे। ये आप में समझिएगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बायोमास की है, ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल है इन द केस ऑफ वाटर बॉडी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 69। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। पहले भी हमने डिस्कस किया है इकोलॉजी में जब हम पढ़ रहे थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात कर लेते हैं। क्या कहता है ये भी आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सक्सेशन से ये क्वेश्चन है आपका, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हर बार ही हम पढ़ाते हैं सक्सेशन पे, दुनिया जहां ये क्वेश्चन आते हैं, जिसने इसको ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को, दोज पीपल वर एबल टू टैकल इट राइटली। राइट, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को यहाँ पे बड़ी ट्रिक था। रादर देन मैं कुछ बड़ा बड़ा कर दूं, वो वाला सिस्टम मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पे कुछ है ना। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट क्वेश्चन नंबर 70। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो गलत बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है ऐसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है। ये बड़ा एक आजकल डायलेमा हो गया कि नॉट ट्रू, इनकरेक्ट। ठीक है, तो माइंड फ्रेम जो बच्चे का है ना, वो उसको क्वेश्चन पढ़ने पे लाना है। क्योंकि जनरली ये होता था कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, जो ओल्ड ट्रेडिशनल या ऑल थॉट ग्रुप से हम इनहेरिट कर रहे थे, वो ये कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो कि आजकल टीचर ने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है कि नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, ठीक है, इनकरेक्ट। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में भी इंफेसिस लगाना है। आप देखिए, पहले वन बाय वन ऑप्शंस को ले लेते हैं, देन वी विल गो डीपर। कहता है प्राइमरी सक्सेशन इन्वॉल्व कॉलोनाइजेशन ऑफ हैबिटेट डिवॉइड ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, जहां कुछ नहीं होता, जीरो से हीरो तक की कहानी इज प्राइमरी सक्सेशन। हमने पढ़ाया भी आपको कि ऑल द स्टेप विच आर देयर। ठीक है ना। तो न्यूडेशन, है ना, इन्वेजन, ठीक है, माइग्रेशन, इकासिस, ठीक है, उसके बाद आपका आगे के जो स्टेप है, ठीक है, तो वो सारे जो है आपके प्राइमरी सक्सेशन से स्टार्ट होते हैं। जो हमने स्टेप्स की बात करी है कि भाई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो उसमें यही बोला है कि डिवॉइड ऑफ लाइफ, जहां पे कुछ ना हो, अगर वहां इस तरह की कहानी बन रही है, तो वो तो भैया फिर 110% प्राइमरी सक्सेशन में ही आएगा कि कुछ भी नहीं था और बिल्कुल जो है जीरो से हीरो बन गए। न्यूडेशन, इन्वेजन, माइग्रेशन, एग्रीगेशन, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, जो सारे स्टेप्स को फॉलो करें। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डिनायल है ही नहीं। प्राइमरी सक्सेशन है जी, हम भी एग्री करते हैं, इससे कौन मना कर रहा है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिएगा, इस अगले स्टेटमेंट में क्या बात आ रही है। कहता है इन प्राइमरी सक्सेशन कॉलोनाइजिंग स्पीशीज डील्स विद मोर स्ट्रेसफुल कंडीशन कंपेयर टू स्पीशीज कॉलोनाइजिंग इन सेकेंडरी सक्सेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि प्राइमरी वालों को सब कुछ जीरो से बनाना पड़ता है। तो प्राइमरी सक्सेशन में जो कॉलोनाइजेशन होती है स्पीशीज की, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील करती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन के, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनना है प्राइमरी में। ठीक है ना, तो प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा स्ट्रेस पड़ती है। ठीक है, तो इन प्राइमरी सक्सेशन द कॉलोनाइजिंग स्पीशीज डील्स विद मोर स्ट्रेस, क्योंकि पहली बार आप वो काम कर रहे होते हो ना, आपको पता नहीं होता एक स्पीशीज जाएगी, दूसरी आएगी, इट विल एक्लिमेटाइज इन दैट एरिया एंड ऑल द थिंग्स विल हैपन, राइट, कंपेयर टू स्पीशीज कॉलोनाइजिंग इन द सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद का स्टेटमेंट आता है आपका थर्ड स्टेटमेंट, which says that secondary succession involve re-establishment of a community। बिल्कुल सही बात है, जो कम्युनिटी वहां से जाएगी उसको दोबारा से तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सेकेंडरी में। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज वहां से खत्म होगी प्लांट की, और सॉइल है वहां पे अभी भी, तो सेकेंडरी सक्सेशन में हमें री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस कम्युनिटी को। जैसे आप देखिए कि लेट अस सपोज मैं करता हूं कि
चीता मेरे एक्सटिंक्ट हो गए कहीं से और मैं दोबारा से अफ्रीका से चीता मंगा के रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उस इकोसिस्टम में, तो मेरी कोशिश है कि मैं उस कम्युनिटी को दोबारा से रीएस्टेब्लिश करना चाहूंगा। ठीक है, या लेट अस सपोज करिए कि कहीं पे कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट था, वो वहां से चला गया 3 4 5 साल के लिए, फिर दूसरे हैबिटेट से मिलाया, मैंने दोबारा कोशिश की बिकॉज ऑफ सम वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर और समथिंग, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करिए गाइस, क्या कहती है लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इट सेज दैट colonizing, species face less competition for resources in the secondary succession compared to primary succession। ये गलत बात है भाई। कंपटीशन तो चाहे आप सेकेंडरी करिए चाहे प्राइमरी करिए, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों जगह पे एक्टिवेटेड रहता है, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बल्कि जो आपका एक जो कह रहा है कि कॉलोनाइजिंग स्पीशीज फेस लेस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज इन सेकेंडरी सक्सेशन कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, ये गलत बात है। इक्वल टू ही होता है दोनों में। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में तो उसको इस तरह का कॉलोनाइजिंग प्रेशर फेस करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे किसने कहा कि वहां पे इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक कुछ कंपटीशन कम होगा? दोनों जगह बराबर है, चाहे आप प्राइमरी में करिए चाहे सेकेंडरी में करिए। ठीक है, तो जो भी कॉलोनाइजिंग स्पीशीज है वो ज्यादा ही कंपटीशन फेस करती है सेकेंडरी सक्सेशन में एज कंपेयर टू प्राइमरी। अभी हम देखते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और इसने गलत ही पूछा था, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी इनको हम डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे। So fourth question is the correct answer here. The correct answer is the fourth one. Now let's have a quick look and talk about which are the logics. तो वन बाय वन इनको डील कर लेते हैं फटाफट से जी। प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन आपको पता ही है, मैं इसके बारे में डिटेलिंग ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, और from revision perspective we can do primary succession occurs in newly formed or exposed substrate with no soil and little or no living organism। मैंने बताया था बेयर रॉक पे जिराज है ना, या आफ्टर ग्लेशियर रिट्रीट न्यू वोल्केनिक लावा। पायनियर स्पीशीज आर स्ट्रेस टॉलरेंट लाइकेन सम एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एबायोटिक कंडीशंस एंड बिगिन सॉइल फॉर्मेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की जो बात हमने की थी अपने लेक्चर में, occurs where a community has distributed but soil and often seeds root remain after fire, farming, flood and recolonization is faster because the substrate is already biological and physically present there। स्टेटमेंट्स को चेक करना हमारे लिए मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि वही हमारा मेन सिस्टम है। वन बाय वन देखते हैं कि शुरू की जो 3 स्टेटमेंट थी वो करेक्ट क्यों है और फोर्थ वन रॉन्ग क्यों है। पहला, प्राइमरी सक्सेशन इन्वॉल्व कॉलोनाइजेशन ऑफ हैबिटेट डिवाइड ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी साइट्स lack established communities and soil, so pioneer starts from virtually zero biotic legacies। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। इन प्राइमरी सक्सेशन कॉलोनाइजेशन, जो दूसरा स्टेटमेंट था आपका, इन प्राइमरी सक्सेशन species with more stressful condition compared to species of colonization secondary succession। True, primary colonization cope up with several abiotic stress, no soil, extreme temperature, right swings, nutrient scarcity, where secondary colonization encounter milder abiotic condition। वहां पे फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट होता है। सेकेंडरी सक्सेशन वो रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। रिकवरी और रीबिल्डिंग द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। बात आती है फोर्थ स्टेटमेंट में कि ये रॉन्ग क्यों गया। कोलोनाइजिंग स्पीशीज फेस लेस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज इन सेकेंडरी सक्सेशन कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ये। इन प्राइमरी सक्सेशन देयर आर वेरी if competition initially the main limit is abiotic stress, right, है ना। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में भी आपको कंपटीशन बहुत होते हैं। इन सेकेंडरी सक्सेशन सॉइल सीड्स एंड सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म ऑफन रिमेन, many species can establish quickly and survive। plants re-sprouting individual create immediate competition और light nutrient space, वहां पे और तरह के कंपटीशन है। लाइट के लिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, न्यूट्रिएंट के लिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, स्पेस के लिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। सो कोलोनाइजिंग इन सेकेंडरी सक्सेशन यूजुअली फेस ग्रेटर कंपटीशन। वहां पे तो बढ़ ही रहा है भाई, क्योंकि वहां पे आपके पास इंट्रा भी है और इंटर भी है। इनिशियली आपके पास इंटर कंपटीशन नहीं होता, इंट्रा ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरू में तो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, वो खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सेकेंडरी में उल्टा ज्यादा है, कम नहीं है।
ठीक है, ज्यादा ही है। इवन दो एबायोटिक स्ट्रेस इज लोअर देन पायनियर इन प्राइमरी सक्सेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हमने लाइकेन का। Lichen and mosses colonize the bare rock after the glacier. Primary face almost no biological competition but extreme physical rest. After a forest fire, secondary grasses, shrubs, and resprouting trees all compete rapidly for light. Nutrient competition is strong from the start. ये बिल्कुल सही बात है कि भाई ये होने के बाद से तो बड़ी समस्या हो जाती है। सेकेंडरी के बाद तो आपको एक एक रिसोर्स के लिए इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। तो वी कैन से कि सेकेंडरी में उल्टा ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है ना। सेकेंडरी में उल्टा ज्यादा मेहनत लगती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नेट तो पहुंचना आसान है, पर जेआरएफ पहुंचाने में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा माइलेज खर्चा करना पड़ता है। तो जो सेकेंडरी सक्सेशन वाली स्पीशीज है वहां पे ज्यादा एफर्ट है, क्योंकि वहां इंटर और इंट्रा दोनों आपको फेस करना पड़ेगा। सो विद दिस द क्वेश्चन नंबर 70 कंक्लूड एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 70, और यही यहाँ करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया 70 क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है किसी को, जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्विकली क्लियर है? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71